This is Akashvani. Please stand by for our next announcement. This is Akashvani. We now bring you a daily report on the 33rd Olympic Games being held in Paris, France. 33rd Olympic Games, Paris 2024. अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। The Olympics brings us some of the best moments in sports. Moments that see history being made to be remembered. Like the one that was witnessed in Paris when Cuba's legend, Mijaín López Núñez, made Olympic history by winning his 5th consecutive gold medal in the same event, a feat that has never before been achieved in the Summer Olympic Games. Nicknamed El Terrible for his dominance, he won his first gold at the Beijing Games in 2008 and followed it up with golds in London 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 and now in Paris 2024. So if you just heard about glory, here is what despair feels like. Wrestling fans in India and around the world woke up to a rude shock yesterday with the news that India's gold medal hope was disqualified from competing further in the competition. To tell you more about this story, here is Mahendra Singh Lalas. आईफल टावर के नजदीक ही हो रही है कुश्ती की प्रतियोगिताएं। कल सुबह यही महिलाओं के 53 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में अंतिम पंगाल का मुकाबला था तुर्की की ज़ेनेप येटगिल से और 1 मिनट 41 सेकंड का समय रहते ही ज़ेनेप ने अंतिम को 10-0 से शिकस्त दे अगले राउंड में प्रवेश किया और अंतिम का पेरिस ओलंपिक का सफर यहीं पर खत्म हो गया। इससे पहले कल सुबह समूचे देश की खुशी दुख में तब्दील हो गई जब ये पता चला कि 50 किलो फ्री स्टाइल भार वर्ग में फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट का वजन फाइनल बाउट से पहले थोड़ा सा ज्यादा पाया गया और वे डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। ये है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा। I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. विनेश के भार वर्ग में अब उनसे हार चुकी जापान की यूई सुसाकी और यूक्रेन की लिवाच ओक्साना के बीच कांस्य पदक का मुकाबला हुआ जिसे सुसाकी ने आसानी से जीत लिया। विनेश को लेकर क्या कहती हैं सुसाकी? I'm so regret and I'm so sorry. कांस्य पदक पाने के बाद सुसाकी की प्रतिक्रिया। I have to more stronger and I will become an Olympic champion again. उधर दूसरे मुकाबले में चीन की फेंग जिकी ने मंगोलिया की उटकुन जरगल डोलगोरजाव को 6-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए हुए मुकाबले में क्यूबा की यूस्नेलिस गुज़मन को 3-0 से हराकर नई ओलंपिक चैंपियन बनी अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांड। You imagine it for so long and now it's happened and I'm like, I'm not computing. Yeah, oh my goodness. You know, this has been a dream of mine for so long now. विनेश को लेकर ये है सारा की राय। I absolutely, obviously once she had made I expected her today for sure, but I was preparing for whoever stepped on the mat. My heart hurts for her. I know that's not how she saw this coming. She had a great day yesterday and obviously that sucks, you know what I mean? But at the end of the day, this was also part of what we do is make weight. So it didn't happen. Somebody else stepped in and I was ready to get the job done no matter who was there. डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चे को दस्त से कैसे बचाएं? रक्षा, रोकथाम और उपचार के साथ बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। खाना पकाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोएं। और दस्त हो जाने पर
हर दस्त के बाद बच्चे को ORS का घोल पिलाएं और 14 दिन तक जिंक की गोली दें। समझ गई डॉक्टर साहब। क्या? रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। In the French capital, Shoria Chaudhary was at the Stade de France to catch India's athletes in action. The morning session at the Stade de France was a disappointing one for Indian track and field athletes yesterday. 3 Indian stars were in action simultaneously at the hallowed stadium, looking to make it through to the final of their events. They were Sarvesh Kushare in the men's high jump, national record holder Annu Rani in women's javelin, and renowned hurdler Jyoti Araji, also a national record holder in the women's 100-meter hurdles. All three failed to perform to their potential and had a session to forget in front of a packed crowd. Kushare cleared 2.15 meters with his first jump, but then ran into a roadblock, failing to clear 2.20 meters in 3 successive attempts to suffer an early exit. He came 13th in his group. What's more disappointing is that Kushare's personal best is 2.27 meters, and 2.24 meters would have given him a ticket to the final. Meanwhile, Yaraji came 7th in her heat, clocking 13.16 seconds, way higher than her national record mark of 12.78. The Asian Games silver medalist will get another chance to the repechage. She spoke to us about the problems she faced and the mistakes made. How happy or unhappy are you with the performance today? I didn't execute nicely, so I have to focus on repechage tomorrow. Will you have some other strategy or have you understood the conditions better? Actually, I missed my start. I didn't execute perfectly. They hold it a little longer, so I got a little panic, so I have to be control and do it. Annu Rani will also like to forget her morning at Saint-Denis. The automatic qualifying mark in women's javelin was 62 meters. Her personal best and national record is 63.82 meters. She had thrown 62.92 to win gold at Hangzhou last year. Here she began with a 55.81 meters throw, subsequently losing steam and throwing a disappointing 53.22 and 53.55 meters to finish 15th in her group out of 16 participants. It was an exit that left the Indian star deflated as she finished 26th overall and she walked off the stadium still thinking about what went wrong. These 3 star Indian athletes will all contemplate the reasons behind them falling short of their own best marks and expectations and surely come back stronger to the quadrennial games. Because the Olympics, as they say, are different. It is different in many ways, some of them bizarre. In the 5,000 meter heats, 2 races ran into strange problems. In the first, 4 runners suffered a crash, including British star George Mills after some intense pushing and shoving. All 4 were deemed to have been disadvantaged by the fall and the referee moved them into the final. Meanwhile, in the next, a cameraman stepped into the track as the runners came through, nearly causing a collision. Thankfully, all the participants were able to avoid him to the finish line. अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Being in the vicinity of the iconic Eiffel Tower, the Trocadero is a venue that has captured the imagination not only of thousands of visitors who get there, but also media persons like Rajeshri Trivedi. एक तरफ जहां ट्रैक एंड फील्ड में भरपूर ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वहीं रेस वॉकिंग ऐसी स्पर्धा है जहां अनुशासन के साथ चलने और सटीकता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इस वर्ष पेरिस ओलंपिक 2024 में मिश्रित टीम वॉकिंग रेस का पदार्पण हुआ। दौड़ में 25 टीमों ने भाग लिया, जिनमें से प्रत्येक में एक पुरुष और एक महिला एथलीट शामिल थीं, जो दौड़ में बारी बारी से लगभग 10 किलोमीटर के 4 चरणों में मैराथन को पूरा किया। यह कदम पहली बार पूरे ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा में पूर्ण लैंगिक समानता के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। आज के इस स्पर्धा में पहले स्थान पर थे स्पेन के मार्टिन अल्वारो और परेज मारिया 2 घंटे 50 मिनट और 31 सेकंड के साथ। पिंटारो, ब्रायन डैनियल और मोरी जॉन ग्लेंडा इक्वाडोर के 2 घंटे 51 सेकंड और 22 मिनट में। ऑस्ट्रेलिया के काउली राइडियन और मिंटाग जमीमा तीसरे स्थान पर 2 घंटे 51 मिनट और 38 सेकंड के साथ। भारत का प्रतिनिधित्व प्रियंका गोस्वामी और सूरज पनवर ने किया। ये दोनों ही एथलीट रेस वॉकिंग में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। 2022 कॉमनवेल्थ गेम में प्रियंका रजत पदक विजेता थीं और यूथ ओलंपिक खेलों में रजत पदक विजेता रहे सूरज पनवर। लेकिन भारतीय जोड़ी के लिए रेस
निराशाजनक रही और ये रेस पूरी भी नहीं कर पाए। प्रियंका गोस्वामी ने अपनी बात कही। मेरा सेकंड ओलंपिक्स है। टोक्यो में मैं 17 थी और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा शायद ट्रेनिंग में कमी रह गया है और इतने एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम वर्ल्ड से छटके इतने एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरा जो 20 के में रिजल्ट रहा, पूरे इंडिया में लोगों ने उसको ट्रोल किया कि अब इसने 45 गर्ल्स में 41 फिनिश किया है। तो मैं उन सभी को कहना चाहूंगी कि यहाँ पे 45 गर्ल्स भी पूरे वर्ल्ड से छटके यहाँ तक आई है और मैं सिर्फ 41 में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 41 आई हूँ। तो उनको ये जवाब जरूर देना चाहूंगी। सपोर्ट तो बहुत मिला है, इंडियन गवर्नमेंट से भी हो, साई से, टॉप से, फेडरेशन से, प्राइम मिनिस्टर सर है, सबको बहुत मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं हमारे मेहनत में भी कमी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम समझ रहे हैं चीजों को कि बाहर के एथलीट कैसे मेडल जीत रहे हैं और कैसे हम जीत सकते हैं उनके बराबर। जब मैं ट्रेनिंग में डेली 40 to 45 किलोमीटर वॉक करती हूँ और हमारा इवेंट 20 किलोमीटर है, जो ये मिक्स मैराथन रेस वॉक है, ये फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में हुआ, तो फर्स्ट ही एक्सपीरियंस है और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है 20 किलोमीटर के लिए। इंडिविजुअल में क्या है, 3 वार्निंग एक अकेले को मिलती है। इसमें अगर 2 वार्निंग लड़के को है और 2 मुझे है तो हमें मतलब 4 मिनट 5 मिनट खड़ा करते चले जाएंगे, फिर एक ऐड होगी तो 1 मिनट और खड़ा करते चले जाएंगे। तो इसका रूल्स थोड़ा डिफरेंट है। जितने भी हमारे इंडिया में एथलीट ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबका सपना होता है कि हम एक दिन ओलंपियन बने और यहाँ पे आके जब हम एक ओलंपिक दूसरा ओलंपिक जाते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं मेंटलिटी रहती है कि हम मेडल जीते। वो दिन के ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसा मेरा इंडिया रिकॉर्ड है 128 का, तो मेरा यहाँ का टाइमिंग उतना अच्छा नहीं आया। तो वो एथलीट की बॉडी ऐसा है कि हर बार एक जैसी नहीं चल सकती है। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। The picturesque venue for golf is the Albatross 18-hole course southwest of central Paris, where V. Shivakumar tracked Indian golfers in action. It was bright and sunny at the Le Golf National venue for the ladies' individual event in golf. India's Aditi Ashok and Diksha Dagar started well, with Aditi teeing off first. Diksha joined just before 11 a.m. Paris time. Aditi was tied T2 till the 11th hole but slipped a bit with bogeys, and by the end of round 1, Aditi finished tied at 13 with a score on par at 72. Diksha was slightly better with a score of 71, 1 under, tied at 7. Aditi made 3 birdies, 1 bogey and 1 double bogey in round 1. Céline Bouthier, meanwhile, of France, shot into the lead, probably her familiarity with the course working to her advantage. She finished at 65, 7 under, an excellent performance considering the others with her in the leaderboard. Ashley Buhai of South Africa was second with 68. On her performance in her 3rd Olympic Games, here's Aditi Ashok. I think I played well for the most part. Didn't make many mistakes except for the last holes. Obviously, the course is really tricky in the wind, so I think that's the toughest part. But I think if it's not windy, you can score a lot. So yeah, you kind of have to make the most out of the calmer stretches on the golf course. For me, it's just another tournament. I don't try and put any extra, expectations or pressure on the week. But yeah, I know I was close in Tokyo, but I played well there all 4 days. So I know if I play well all 4 days, I'll have a good chance. So I guess that's the first step. Young Diksha Dagar was unfazed by the field of senior golfers and held her nerve, making 3 birdies before she ended with 2 bogeys. Here's Diksha. It was a very good start and I was going very good till the 17th hole. I ended up making bogey, but it's all right. But I had a chance on 18th hole to make a birdie, which is very short. Like 70% of the players make birdie there. So I was taking a birdie putt, but went a bit aggressive and went past a little bit, like 4 feet across the hole. And sorry, I couldn't make the return, but there was a misread in the line. But it's okay. This is what golf is. Golf can be sometimes hard. It can be sometimes in your favor or not. All I have to is just work on my process. In this field, there are so many good players playing in this field. Top players are playing. So I feel that I'm also one of them. So why not focus on myself rather than focusing on others? Because golf is all about you and it is your shot, it is your ball, it is your fairway. So you play on yourself.
Table tennis made its debut as an Olympic sport at the 1988 Games held in Seoul. India, who have made huge progress in the sport, were in action yesterday in the quarterfinals. Sudhir Rajoria and Shibu George were there. साउथ पेरिस अरीना में कल टेबल टेनिस में भारतीय अभियान समाप्त हो गया। महिलाओं की टीम प्रतियोगिता में भारत का मुकाबला चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी की टीम से था। भारत पहली बार ओलंपिक्स के क्वार्टर फाइनल में खेल रहा था और क्वार्टर फाइनल तक की यात्रा के आधार पर हम नया इतिहास रचने में सक्षम थे। पहले डबल्स में श्रीजा अकुला और अर्चना कामत ने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया। पहले गेम में 5-11 से पिछड़ने के बाद 11-8 से वापसी की, पर अगला 2 गेम वे 12-10, 11-6 से हार गयी। पहले सिंगल्स में भारत के स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा का सामना हुआ एनेट कॉफमैन से और 11-8 से पहला गेम जीत मनिका ने शानदार शुरुआत भी की, पर वे अपनी लय को बनाए नहीं रख सकी और 11-8, 5-11, 7-11 और 5-11 से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस तरह भारत जर्मनी से 2-0 से पिछड़ रहा था। दूसरे सिंगल्स में अर्चना कामत ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और जियोना शान को 19-17, 1-11, 11-5, 11-9 से मात देकर भारत की उम्मीद जगा दी। पर चौथे मैच में श्रीजा अकुला एनेट कॉफमैन के आगे टिक नहीं पाई और इस तरह जर्मनी ने भारत पर 3-1 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी से बात करते हुए मनिका बत्रा, अर्चना कामत और श्रीजा अकुला। हम तीनों ने ऑफ कोर्स वहाँ पे हम अपना बेस्ट देने गए थे, बट आई थिंक जर्मनी प्लेड रियली वेल, स्पेशली द लेफ्ट हैंडर एनेट। वी शुड थिंक कि अभी खत्म नहीं हुआ है एंड वी शुड थिंक मेडल लाने का। सो वो थिंकिंग एक चाहिए, बस एक रिकॉर्ड नहीं बनाना कि प्री क्वार्टर का क्वार्टर या टीम क्वालिफाई हुई है उसका, बट वी हैव टू गेट अ मेडल। सो आई थिंक हम अपना बेस्ट देने आए थे यहाँ पे एंड वी ऑल प्लेड रियली वेल। अर्चना प्लेड रियली वेल, सो इट हैपेंस, टीम हार गया, बट यस वी आर रियली अपसेट कि हम क्वार्टर फाइनल्स नहीं जीत पाए, बट आई थिंक इफ वी क्वालिफाई नेक्स्ट टाइम वी विल गिव आवर बेस्ट एंड अभी जाके ऑफ कोर्स वी विल वर्क हार्ड for next tournaments and we'll try to learn from these mistakes what we made today. So Archana? No, I'm happy to have won that match, but I still feel the doubles was key. We were leading, we had some chances. I wish I had taken a little more risk, been a little more confident in the doubles and given a better start to the team. But other than that, I'm 100% sure we all gave our best and results are never in our hands. So we just tried our best. So this is your first Olympics, isn't it, Shrija? Yeah, हमने अपना बेस्ट खेला है, पर जीतना चाहिए था ये मैच, पर ठीक है हमने अपना बेस्ट दिया तो रिजल्ट ऑब्वियसली हमारे हाथ में नहीं है। इससे बस लर्निंग लेके आगे जाके हम और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक टीम को तो जीतना होता है, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि आप लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, ये तो एक बहुत उम्मीद वाली बात ही है ना। आगे तो बढ़ रहे हैं पर हमको मेडल तक जाना है, तो हम बस वही एम कर रहे हैं कि देश के लिए मेडल जीते। तो हम उतना सेटिस्फाइड तो नहीं है ये परफॉर्मेंस से, पर इससे विल जस्ट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड। भारतीय कोच मौसिमो कॉन्स्टेंटिनो पेरिस ओलंपिक में भारतीय अभियान से खुश दिखे और उन्होंने विश्वास जताया कि भारत शीघ्र ही टेबल टेनिस में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। Very well, because especially we never got this such a result. Before coming here, I said that for us this is our warming up, and we have proved to scare opponents. We made 2 players in top 16, never happened. For the first time we play team, and then the women's team made the quarter-final. Quarter-final proved that they have played better than us, and when it's like this, you have only to congratulate with your opponents. But still, there was chance. They were fighting back. Chances are always there. Chances are always there, but at the end you have to play better. They were comfortable, especially this left-hander, very comfortable with the material that Manika Batra and Shrija Akula used. She was very confident to play, and actually our players were quite surprised of this. And next time we have to reflect on this and how to find some countermeasures. अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
There is perhaps no sport that tests the physical strength of an individual more than weightlifting. Names like Charles Vinci from the US or Pyros Dimas from Greece are legends who have left their mark on the sport. Reporting about Indian weightlifters who want to leave their mark on the sport, here is Rakesh Jain in Paris. बहुत अच्छा रहा आज का कंपटीशन। मैंने पूरा कोशिश की, पूरा फाइट किया सबके साथ। बहुत अच्छे चल रहे थे स्नेच में, पूरा कॉन्फिडेंस थी, मैं पूरा सब कुछ अच्छा चल रहा। बस आज मेरा किस्मत नहीं थी। मैंने तो पूरा मेरी तरफ से तो मैंने पूरा कोशिश किया, पर मेरा किस्मत नहीं थी, इसलिए हाथ से मेरा मेडल निकल गई। सॉरी पूरा भारतवासी को मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने मेडल इंडिया के लिए नहीं दे पाई, पर मेरी तरफ से मैंने पूरा कोशिश किया। भारत की मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक के 49 किलोग्राम वर्ग में पदक से चूक गई। उन्होंने स्नैच और क्लीन एंड जर्क मिलाकर कुल 199 किलो का वजन उठाया और चौथे स्थान पर रही। मीराबाई ने स्नैच में शानदार शुरुआत की। कूल्हे की चोट से उबरने के बाद वापसी कर रही मीराबाई ने स्नैच में पहले प्रयास में आसानी से 85 किलोग्राम वजन उठाया, दूसरे प्रयास में 88 किलोग्राम वजन उठाने में विफल रही और तीसरे प्रयास में उन्होंने 88 किलोग्राम का वजन उठाकर बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के स्नैच के प्रदर्शन की बराबरी की। क्लीन एंड जर्क में मीराबाई ने 107 किलो वजन उठाने का फैसला किया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 111 किलो कर दिया। पहले प्रयास में भी असफल रही, लेकिन दूसरे प्रयास में 111 किलो वजन सफलतापूर्वक उठा लिया। इस प्रदर्शन के बाद मीराबाई का कुल स्कोर 199 किलो हो गया और वो तीसरे स्थान पे पहुंच गई। अंतिम प्रयास में मीराबाई ने 114 किलो वजन उठाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इस तरह क्लीन एंड जर्क में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 111 किलो ही रहा। हाँ, स्नेच में काफी अच्छा हो रहा था, सब अच्छा हो रहा था। क्लीन एंड जर्क में भी वार्म अप में बहुत अच्छा चल रहे थे। बस स्टेज में आके क्लीन इजी किया था, पर जर्क में थोड़ा सा पूछ टेक्निक की वजह से रह गई। एक्चुअली आज मेरा प्रोग्राम भी है, लेडीज प्रोग्राम है, मेरा 3rd डे है, तो इसलिए बॉडी थोड़ा सा वीकनेस लग रही थी, पर मैंने पूरा कोशिश किया था कि मैं एक मेडल तो जरूर जीतना है, पर मेरा किस्मत ही नहीं थी, तो मैंने पूरा कोशिश किया था। चीन की हो जिहुई ने कुल 206 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। रोमानिया की मिहाइला वैलेंटिना ने 205 किलो वजन उठाकर रजत पदक और थाईलैंड की खम्बाओ सुरोचना ने 200 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। मीराबाई और सुरोचना के बीच सिर्फ 1 किलो का अंतर रहा। अगर मीराबाई 1 किलो अधिक वजन उठाती तो वो कांस्य पदक जीत सकती थी। मैं आज मेडल नहीं ले पाया, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी कि मैं हर कंपटीशन में, जब आने वाली कंपटीशन है या नेक्स्ट ओलंपिक में, मैं जरूर कोशिश करते रहूंगी, मैं जरूर इंडिया के लिए लाऊंगी। मैं पूरा इससे और ज्यादा मेहनत करके बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए कोशिश करूंगी। भारत और आसपास के देशों से आए दर्शकों ने मीराबाई चानू के प्रदर्शन की सराहना की। शिवानी बारूका, औरंगाबाद। बेटर हो सकता था, मेडल की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बट आई एम श्योर उसने उसका 100% दिया है, तो काफी अच्छा लगा उसको देख के स्टेज पे। मतलब एटलीस्ट ओलंपिक पे आना बहुत बड़ी बात है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। To bring you all the late evening action in athletics from the Stade de France is Nitish Arora. 7 अगस्त को एथलेटिक्स में भारत के 3 खिलाड़ी मैदान में थे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन मुकाबले थे पुरुषों की ट्रिपल जंप इवेंट के। ग्रुप ए में बिब नंबर 808 चित्रावल प्रवीण, जिनका पर्सनल बेस्ट 17.37 मीटर्स है और सीजन्स बेस्ट 17.12 मीटर। वहीं ग्रुप बी में भारतीय दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे बिब नंबर 814 में अब्दुल्ला अबूबाकर, जिनका पर्सनल बेस्ट जंप है 17.19 मीटर्स का और सीजन बेस्ट 17 मीटर्स। पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का विश्व रिकॉर्ड 1995 से ग्रेट ब्रिटेन के जोनाथन एडवर्ड्स के नाम है, जिन्होंने 18.29 मीटर का जंप लगाकर ये रिकॉर्ड कायम किया। ओलंपिक खेलों की बात करें तो रिकॉर्ड अटलांटा ओलंपिक्स 1996 में अमेरिकी एथलीट केनी हैरिसन ने 18.09 की कूद लगाकर बनाया था।
दोनों ग्रुप्स को मिलाकर 32 में से टॉप के 12 एथलीट मेडल राउंड्स में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए आगे बढ़ सकते थे। प्रवीण ने अपना पहला जंप 15.99 मीटर की दूरी का लगाया, दूसरा 16.25 और तीसरा 16.21। तो बेस्ट उनका जंप रहा 16.25, लेकिन वो काफी नहीं था क्वालिफाई करने के लिए। आकाशवाणी से बात करते हुए उन्होंने ये कहा, Actually, I'm feeling good. This is good experience for me. Now I have good experience every competition, World Championship, Olympics, Diamond Leagues. So I'm going to preparation for the next World Championship. It's good. Everything is good. Thank you so much. अब्दुल्ला अबू बकर काफी हताश नजर आए आज के अपने बेस्ट जंप जो 16.49 मीटर तक गया। उनका पहला जंप था 15.99, दूसरा 16.19 और तीसरा 16.49 मीटर्स। मेडल्स दौड़ के लिए ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मार्क 17.10 मीटर का था या फिर टॉप के 12 जंपर। तो ये दोनों ही क्राइटेरिया को हमारे दोनों जंपर्स मीट नहीं कर पाए। आकाशवाणी से बात करते हुए अब्दुल्ला अबू बकर, मोंटो ट्रैक वेरी डिफरेंट है, वो स्पीड और एक्सप्लोसिव थोड़ा अलग ही है। मैं कितना फोर्स जा रहे, वो फॉरवर्ड नहीं जा रहे, ऊपर ही जा रहे। वी नीड लाइक प्रैक्टिस, थोड़ा टाइम उसमें प्रैक्टिस करके वो अडेप्टेशन होना है। इसलिए मेरे को वही सोचा, मतलब मैं पहले जब 60 का ऊपर कैसे भी जंप करता है हम इंडिया में है, तो नॉर्मली यहाँ तो मैं 15.99 शुरू किया। वो मेरा मोरल ही इतना डाउन हो गया, मतलब मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूँ, वो पीछे से आ रहे, ऊपर जा रहे हो, फॉरवर्ड नहीं जा रहे। वो मेरे को बहुत सैड फील हुआ। इतना मेहनत किया, इतना पोटेंशियल, मतलब इतने साल में यही ड्रीम आगे आया था, मतलब मेरे को वो सही से नहीं हो पाया वो फिनिश करने के लिए। एक्चुअली मेरे को ये पता नहीं कितना दिन मेरा माइंड में रहेगा। आई विल कम बैक सून। आज के दिन का अंतिम मुकाबला था जो स्थानीय समय अनुसार रात 9:43 पर शुरू हुआ। पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ का फाइनल्स। ओलंपिक इतिहास में पहली बार कोई भारतीय धावक इस स्पर्धा के फाइनल्स तक पहुंचा था। अविनाश मुकुंद साबले, उनका पर्सनल बेस्ट और सीजन बेस्ट इसी वर्ष दर्ज किया गया, 8 मिनट 09.91 सेकेंड्स। लेकिन इस दौड़ में सबकी नजरें इथियोपिया के धावक लंबेचा पर थी, जिन्होंने इस सीजन में 8 मिनट 01.63 का समय निकाला था। अविनाश मुकुंद साबले आकाशवाणी से बात करते हुए, देखो वैसे देखा जाए तो मैं इस रिजल्ट को वैसे नहीं बोलना चाहूँगा अच्छा है। उम्मीद जो थी वो नहीं हो पाया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं उस चीज़ को मानता हूँ। बाकी मैं अपनी तरफ से खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। मतलब मैंने कोशिश की देने की, लेकिन वो नहीं कर पाया मैं। शायद मेरे को ज़्यादा उम्मीद आ गई थी कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, रेस स्लो जा रही तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। शायद उस टैक्टिक्स में मैं सक्सेस नहीं हो पाया, बंच बन गया और लग रहा था कि लास्ट लैप में मैं खींच सकता हूँ। शायद वो नहीं हो पाया, कैसे भी नहीं हो पाया मुझे नहीं पता। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है, मेरी बॉडी ने रिएक्ट नहीं किया। जो भी सपोर्ट किया हमें सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। मुझे सभी ने सपोर्ट किया है, बस मैंने अपनी कोशिश की है। रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी है एक्सेप्ट करके मैं आगे की मेहनत करते रहूँगा। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि एथलीट अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। मैंने भी अपना बेस्ट देने की कोशिश की। रिजल्ट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और देखो मेरे पास 2 ओलंपिक्स, एक ओलंपिक्स में खेल के गया था, दूसरा ओलंपिक्स मेरा था। मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की, नहीं हो पाया। उसके लिए मैं अपने आप को ही मतलब ये मान रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जैसे मैंने ये किया। लेकिन आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा कि मैं देश के लिए मेडल जीतूं। नतीजा चाहे कुछ भी निकला हो, लेकिन अविनाश मुकुंद साबले इतिहास रचने में जरूर कामयाब रहे हैं। 29 वर्षीय साबले मांडवा के रहने वाले हैं और इस समय भारतीय सेना में कार्यरत हैं। The United States of America topping the medal charts with 94 medals, which consist of 27 gold, 35 silver and 32 bronze. China is second with 65 medals that contain 25 gold. Australia in third place with 41 medals, having claimed 18 gold. Host nation France have 50 medals with 13 gold to be in fourth place, while Great Britain are in fifth place with 49 medals. India are in 67th place with 3 bronze medals. Coming up are Diksha Dagar and Aditi Ashok, who will be hoping to keep their momentum in golf. Jyoti Yaraji in 100-meter hurdles repechage round. Aman and Anshu in 57 kilo women's wrestling. And in the evening, India will face Spain in the bronze medal match in men's hockey. And Neeraj Chopra will be bidding to defend his Olympic gold in men's javelin at the Stade de France. Hoping that India enjoy a medal rush this evening, I am Savio De Norona signing off from Paris at the 33rd ओलंपिक गेम्स। डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चे को दस्त से कैसे बचाएं? रक्षा, रोकथाम और उपचार के साथ बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। खाना पकाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोएं। और दस्त हो जाने पर
हर दस्त के बाद बच्चे को ORS का घोल पिलाएं और 14 दिन तक जिंक की गोली दें। समझ गई डॉक्टर साहब। क्या? रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। That was a daily report on 33rd Olympic Games being held in Paris, France. This program was produced by the Central Production Team of Akashvani in Paris and was broadcast from the Delhi station of Akashvani.